हाँ जी, गेटवे टू ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੀ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਪਣੀ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ, ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ। ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਈ, ਏ ਜਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਣ ਐਂਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਣ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਆ, ਈ, ਏ ਜਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਸੀ, ਦੇ ਸਨ। ਸੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਛਾਣ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਈ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਮੀਨਜ਼ ਇਹ ਜੋ ਵਾਕ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਵਨਸ ਅਪੋਨ ਏ ਟਾਈਮ ਅ ਲਾਇਨ ਲਿਵਡ ਇਨ ਅ ਜੰਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਲਈ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰੂਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਫੋਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੀ ਕਾਸਟ ਵੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਫੋਰਮ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕਾਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਵੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਵੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਵੀ ਕਾਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਸਟ, 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 ਕਾਸਟਿੰਗ, ਕਾਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ 5 ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਰਬ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਫੋਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਓਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਏ, ਲਿਖਿਆ ਰੋਟ, ਸੈਕੰਡ ਫੋਰਮ ਹੋ ਗਈ ਰਾਈਟ ਦੀ, ਪੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅ ਲੈਟਰ, ਆਈ ਰੋਟ ਅ ਲੈਟਰ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ and then second form of verb, we can say past form of verb, and after that object is written, and at the end of the sentence we are to put full stop, ठीक है, लास्ट ਤੇ full stop ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਡ ਤਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਫੋਰਮ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਆਫ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ। ਕਲੀਅਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਡਿਡ, ਨੋਟ ਅਤੇ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਏ, ਡਿਡ ਨੋਟ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੋਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰੋਟ ਸੈਕੰਡ ਫੋਰਮ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਡਿਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਆਏਗੀ। ਆਈ ਡਿਡ ਨੋਟ ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ, ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਦੈਨ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਓਬਜੈਕਟ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਇੱਥੇ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਡ ਅਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਟੈਂਸ ਹੈ,
ठीक है। क्वेश्चन मार्क लग्या होया, इस तो पता लग्या आपां नूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो शुरू च की भी लिखिया होया, इस तो ही पता लगदा आपां नूं कि सेंटेंस ये प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, जदों इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाउणा आपां ने की करना है, डिड नूं नंबर 1 ते लिखांगे। पहला नंबर जो है प्लेसिंग जिहड़ी है डिड दी है, उस तो बाद सब्जैक्ट डिड आई राइट अ लैटर, ते एंड ते क्वेश्चन मार्क है। स्ट्रक्चर की बनिया कि पहले नंबर ते हैल्पिंग वर्ब आ गई, दैन सब्जैक्ट आ गया, आई सब्जैक्ट है, उस तो बाद फस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इनू प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं आप, दैन ऑब्जैक्ट, अ लैटर की है ऑब्जैक्ट है, उस तो बाद क्वेश्चन मार्क। सो ये स्ट्रक्चर बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। क्लीयर, जेकर सेंटेंस नैगेटिव भी है एंड इंट्रोगेटिव भी है। ठीक है, सो फिर की करेंगे, जिवें आ सेंटेंस देखो कि मैं पत्र नहीं लिखिया, हुण ये सेंटेंस प्रश्नवाचक भी है तो नहीं आ गया विच नैगेटिव भी है, नावाचक भी है। सो इस तरह के सेंटेंस नूं किवें फ्रेम करांगे आपां, पहले नंबर ते आपां हैल्पिंग वर्ब लिखांगे डिड आई, इत्थे नोट आ जाएगा। ठीक है, राइट अ लैटर ते क्वेश्चन मार्क। हुण देखो मैं इकल्ली इकल्ली चीज़ दस रहा, डिड की है बेटा हैल्पिंग वर्ब है, आई की है सब्जैक्ट है, उस तो बाद नैगेटिव पार्टिकल नोट लग गया। ठीक है, जदों कोई सेंटेंस नैगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव होवे, ये मैं पहले भी दस्सिया सी, हुण फिर दस रहा है, जेकर कोई सेंटेंस नैगेटिव भी है तो इंट्रोगेटिव भी है, मिक्स है, तो नोट हमेशा ही सब्जैक्ट तो बाद लिखना होंदा, ध्यान रखना आपां ने, जस्ट आफ्टर सब्जैक्ट नोट इज प्लेसड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, सब्जैक्ट तो बाद ही नोट लिखना है जेकर सेंटेंस नैगेटिव भी है तो इंट्रोगेटिव भी है, एंड हैल्पिंग वर्ब सब्जैक्ट तो पहले नंबर पर आएगी। ठीक है, सब्जैक्ट विचाले इस तो पहला हैल्पिंग वर्ब होगी तो बाद विच नोट होएगा, उस तो बाद मेन वर्ब, इस दे विच मेन वर्ब की फस्ट फॉर्म यूज करनी है आपां ने, दैन ऑब्जैक्ट है, उस तो बाद लास्ट ते क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्लीयर, हुण देखो तुसी WH फैमिली का बेटा वीडियो जेकर लाइक नहीं की प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि सारे स्टूडेंट्स जो है इसनूं समझ सकन ते अपनी सैकेंड टर्म की वधिया तैयारी कर सकन हो। ठीक है, WH फैमिली का कोई वर्ड आ जाए WH फैमिली का, ठीक है, तो किवें सेंटेंस फ्रेम होगा, मैं पत्र क्यों लिखिया, क्यों मतलब वाई, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, किवें बनावांगे इसनूं, जिवें पहलां आपां इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखिया सेम उसी तरह बनाउणा है। ठीक है, तो सब तो पहले नंबर पर वाई होर जोड़ देना आपां ने। देखो डिड यानी कि हैल्पिंग वर्ब, सब्जैक्ट, वर्ब, ऑब्जैक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सेम। ठीक है, प्लस एक चीज़ हुई है कि इस जो क्यों आ गया ना, क्यों आप इंग्लिश कहते हैं वाई। ठीक है, ये वर्ड जो है हैल्पिंग वर्ब तो पहला लिख देंगे आप, वाई डिड आई राइट अ लेटर। सो ये स्ट्रक्चर बन गया, जेकर WH फैमिली का वर्ड आया होया है सेंटेंस दे विच, तां उसकी प्लेसिंग की है 1 नंबर पर है, WH फैमिली का वर्ड लिखना है पहले नंबर पर, उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब लिखनी है यानी कि डिड लिखना है, उस तो बाद सब्जैक्ट है, उस तो बाद वर्ब की फस्ट फॉर्म, उस तो बाद ऑब्जैक्ट है, तो लास्ट ते तुसी क्वेश्चन मार्क लगाना है। हाँ, ये ध्यान रखना जेकर सेंटेंस हू तो स्टार्ट है, हू तो स्टार्ट है तो सीधा सीधा उस तो बाद सैकेंड फॉर्म लगानी है, ये ध्यान रखना आपां ने। ठीक है, जिवें उरे वाई आ, वाई तो बाद आपां ने हैल्पिंग वर्ब लगाई है ना, पर यह ध्यान रखना जेकर सेंटेंस हू तो स्टार्ट है, ये भी WH फैमिली का वर्ड है हालांकि, पर इस दे लई जो है रूल अलग है, हू तो बाद हमेशा ही सैकेंड फॉर्म लिखनी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की गल कर रहे हैं आपां, ते उस तो बाद ऑब्जैक्ट ते क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसका यानी कि स्ट्रक्चर ये बनता है हू प्लस सैकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जैक्ट एंड लास्ट ते क्वेश्चन मार्क। सो ये हो गई अपना थीअरी सैक्शन। हुण आपां चलदे हां तुहाडी बुक के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये 6.1.5 ठीक है एक्सरसाइज का यह नंबर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और वी कैन से सिंपल पास्ट टेंस। सो कित्थे कित्थे यूज होंदा पहला ये भी देख लेने आपां तुहाडी बुक के अकॉर्डिंग। नंबर 1 देखो, टू एक्सप्रैस अ सिंगल एक्ट, कोई एक सिंगल काम है और ईवेंट है, ठीक है, वो घटी है पास्ट दे विच, ठीक है, अतीत दे विच घटी हुई है घटना, वो सिंगल घटना, उसनूं व्यक्त करने वास्ते आपां पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वरतों करते हैं। जिमें देखो, ही ब्रोक दिस टेबल, उसने ये टेबल तोड़ी, ठीक है, उसने ये टेबल तोड़ी, यह मेज तोड़ी, ठीक है, ये पास्ट की घटना है, अतीत की घटना है, तो सिंगल घटना है, तो वर्ब की सैकेंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, इस तरह ये भी एग्जाम्पल्स ने, दे वर इन द गार्डन, हुण वर्क की है, ये बी दी सैकेंड फॉर्म है बेटा। ठीक है, ये पहले भी दसिया सी मैं, उत्थे इज एम आर दसिया सी अपन, इज एम आर फस्ट फॉर्म होंदियां ने, ठीक है, बी दियां, बी इज एम आर, ठीक है, उस तो बाद वोज वर ते बीन थर्ड फॉर्म होंदी है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सो इत्थे बी दी पास्ट फॉर्म की होगी
बी दी पास्ट फॉर्म दो ने याद रखांगे आपां, वोज भी हो सकता है, वर भी हो सकता है। ठीक है, हुण कित्थे दे प्लूरल सब्जैक्ट है, इस करके वर लग्या इत्थे, दे वर इन द गार्डन, वो बाग विच सन। दैन शी वॉज एबसेंट यस्टरडे, वो कल एबसेंट सी, गैर हाजिर सी। सो ये भी बी दी सैकेंड फॉर्म है। क्लीयर, ये सिंगल एक्ट है पास्ट का, उसनों व्यक्त करने वास्ते, एक्सप्रैस करने वास्ते आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वरतों करते हैं। नैक्सट देखो, टू एक्सप्रैस अ हैबिचुअल एक्शन और कस्टम इन द पास्ट, कोई अतीत दी, भूतकाल दी कोई अपनी परंपरा है या एक्शन है, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन है, आदतन जो कोई आदत सी पहला हुण नहीं है, ठीक है, उस तरह की आदत नूं व्यक्त करने वास्ते भी आपां पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वरतों करते हैं। जिमें शी गॉट अप एट 4 AM एवरी डे, ਉਹ हर रोज़ 4 ਵਜੇ सवेरे ਉੱਠਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ नहीं, पास्ट की गल कर रहे हैं आप, इस करके ये पास्ट इंडेफिनिट ਦੇ ਵਿੱਚ बन गया। सो ये वर्ब की सैकेंड फॉर्म लग गई गोट, गैट दी गोट, गैट अप दी गोट अप हो गया। ठीक है, नैक्सट भी ये भी एग्जाम्पल एवें दा, देखो आवर एनसैसटर्स वर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, साडे जो पुरखे सी, पूर्वज सीगे, वो ईमानदार अते मेहनती सन, वॉज दी पास्ट फॉर्म वर। ठीक है, सो नैक्सट देखो, एज अ सबस्टिट्यूट फॉर द पास्ट कंटिन्यूस टेंस, कई बार पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सबस्टिट्यूट के तौर पर भी आपां जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वरतों कर लेंगे हैं। जिमें कि वाइल दे प्लेड वी टुक टी, भी जदों वो खेडे, जदों वो खेडे असी चाह पीती। कहने का मतलब ये है भी जदों वो खेड रहे सी उदों असी चाह पीती। ठीक है तो पास्ट कंटिन्यूस के बनना चाहिए सी, पर इसनूं पास्ट इंडेफिनिट दे विच भी बनाया जा सकता है इवें जिमें कि एग्जाम्पल दे विच दस्सिया गया है। ठीक है, वाइल दे प्लेड, जदों वो खेडे, वी टुक टी, असी चाह पीती। सैकेंड एग्जाम्पल भी देख लो, वाइल वी टॉक्ड दे स्लैप्ट, जदों असी गलबात कीती जां जदों असी गलबात कर रहे सी, दे स्लैप्ट वो सुत्ते। ठीक है, सो ये सी डिस्कशन। हुण देखो एक्सरसाइज नंबर 6 है तुहाडी बुक दे विच। ठीक है, सैकेंड टर्म का सिलेबस है ये, इत्थे फिल करना अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो मीरा टर्न दी है फस्ट फॉर्म, इत्थे आपां इसकी सैकेंड फॉर्म फिल कर देंगे। ठीक है, मूव दी भी सैकेंड फॉर्म मूवड आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस दे विच आपां पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे विच हमेशा सैकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। इत्थे सैकेंड फॉर्म होगी, ये भी सैकेंड फॉर्म होगी। दैन ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, दूसरा भी देखो फुल स्टॉप लग्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई इंट्रोगेटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है ना, सो सैकेंड फॉर्म यूज होनी है। सी दी सैकेंड फॉर्म की होगी 100 इत्थे फिल कर दिता। नैक्सट सेंटेंस भी पॉजिटिव है, फुल स्टॉप लग्या हो, देखो कोई इंट्रोगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, सो इत्थे भी वर्ब दी सैकेंड फॉर्म, मीट दी सैकेंड फॉर्म की है, मैट है, मैट आपां इत्थे फिल कर देवांगे। ओके, नैक्सट देखो, वाइल द गर्ल्स, इत्थे सिंग है, सिंग दी सैकेंड फॉर्म सैंग, ते इधर जो है अपने कोल डांस है, डांस की सैकेंड फॉर्म डांस्ड। ठीक है, क्लीयर हो रही है गल ना। सो क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंसिज ने इत्थों तक जिन्ने भी 4 सेंटेंस आप डिस्कस किए हैं, 4 दे 4 की ने पॉजिटिव ने, इस करके वर्ब की सैकेंड फॉर्म आप फिल कर रहे हैं। नैक्सट देखो, ही, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, इस भी सैकेंड फॉर्म लगनी है गो दी। ही वेंट हो जाएगा वेंट, इत्थे ध्यान रखो करैक्ट कर लो, आवर नहीं आउट है, इत्थे आउट आउट लिखना सी, इत्थे मिस प्रिंट है। ही वेंट आउट फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट लिए बाहर गया। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस सी, इस करके गो दी सैकेंड फॉर्म वेंट इत्थे फिल कर दी। नैक्सट देखो, हुण देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, तो है भी हू तो स्टार्ट होया, जदों हू तो स्टार्ट होवे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है, उदों आपां उत्थे भी वर्ब की सैकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ब्रेक की सैकेंड फॉर्म की होगी ब्रोक। नैक्सट देखो, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सैकेंड फॉर्म यूज होनी है, नैगेटिव भी नहीं है, जो नैगेटिव होंदा तो डिड नोट फस्ट फॉर्म आप लगाते, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो सेंड की सैकेंड फॉर्म इत्थे लगा देंगे सेंट। ठीक है, दैन ये भी देखो पॉजिटिव सेंटेंस है, नो की सैकेंड फॉर्म न्यू, इत्थे आप लिख देवांगे, न्यू इत्थे फिल कर देंगे। ठीक है, इत्थे की हो गया न्यू। दैन नैक्सट सेंटेंस देखो, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं है, नैगेटिव भी नहीं है। जेकर इंट्रोगेटिव होंदा तो डिड ते फस्ट फॉर्म, डिड पहले नंबर ते फिर फस्ट फॉर्म लगनी सी, नैगेटिव होंदा तो डिड नोट नाल फस्ट फॉर्म यूज करनी सी, पर क्योंकि हुण पॉजिटिव है तो सैकेंड फॉर्म ही लगनी है इत्थे भी। सो कॉपी दी सैकेंड फॉर्म हो जाएगा कॉपीड, वी कॉपीड फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। दैन ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिल कर लिए कहा गया अपने आपां है ना, पास्ट फॉर्म फिल करनी है। सो बाइट दी पास्ट फॉर्म की है बिट है, यानी कि सैकेंड फॉर्म की है बिट, द डॉग बिट द पोस्टमैन। दैन ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, फ्लाई दी सैकेंड फॉर्म फिल कर दो फ्लू, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, सो क्राई दी सैकेंड फॉर्म की बन जाएगी क्राइड। नैक्सट देखो एक्सरसाइज नंबर 7 दे विच की है बेटा,
ਇਹ ਵੀ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਰੀਰਾਈਟ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਵਰਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਪਲੱਸ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਊਂਟਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਸੋ ਰਿੰਗਸ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਰੈਂਗ। ਦੈਨ ਪਲੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਪਲੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਪਲੇਡ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਦੈਨ ਹੈਲਪਸ ਹੈ, ਹੈਲਪਸ ਇਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਹੈਲਪਡ। ਹੈਲਪਡ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਹੀ ਕਾਊਂਟਿਡ ਦ ਬੁੱਕਸ, ਦ ਪੀਐਨ ਰੈਂਗ ਦ ਬੈਲ, ਵੀ ਪਲੇਡ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਮੋਹਨ ਹੈਲਪਡ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰੀਡਸ ਹੈ, ਰੀਡਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੈਡ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਪਾਸਟ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਜੇਕਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੈਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਡ, ਰੈਡ, ਰੈਡ, ਰੀਡਿੰਗ, ਰੀਡਸ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮ ਨੇ 5। ਸੋ ਰੀਡਸ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, SES ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਰੈਡ। ਦੈਨ ਡਰਿੰਕਸ ਹੈ, ਡਰੈਂਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ। ਸ਼ਟਸ ਦਾ ਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਸ਼ਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਸੇਮ ਹੈ, ਸ਼ਟ ਸ਼ਟ ਸ਼ਟ। ਕਲੀਅਰ। ਰਾਈਡਸ ਇਸ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਰੋਡ। ਸਟੀਲਸ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਸਟੋਲ। ਹੋਲਡਸ ਅਪ ਇਸ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਹੈਲਡ ਅਪ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ। ਇਹ ਦੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਉਹ 4 ਦੀਆਂ 4 ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 10th ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲੇਲਿਸਟ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ, ਨਰੇਸ਼ਨ, ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੋਇਸ, ਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਲਿਸਟਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਪਦੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ।